पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हालात बदलेंगे, अंदाज बदल लेंगे या कौम की दुआएं रंग लाएंगी? ब्रसल में मौजूद पाकिस्तानी भी पाक भारत मैच के हवाले से इंतहाई पुरजोश हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की जीत पर वो शुक्राने के नवाफिल भी अदा करेंगे और मिठाई भी तकसीम होगी। हमारे नुमाइंदे तनवीर उनसे बात करवाएंगे। मजीद क्या कहना है आप भी सुनिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान will win tomorrow. पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद की जा सकती है कि दोनों रिवायती हरीफ बहुत अच्छा खेलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि बड़ा अच्छा मैच हो और वी विश ऑल द बेस्ट टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान इंडिया ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ we're really very eager to watch that match ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ really would do better। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ پورے زور و شور کے کھیلے اور اپنی 100% ایفرٹ دے اور جیتے دے انڈیا نو۔ ڈریم ٹیم کہ اللہ تعالیٰ کرے اور ایک کچھ اپنی روایت میں بدلن تاکہ تھوڑا بہت انہوں اتنے جانا چاہیے۔ یہ لگتا تو انج ہے کہ صبح مالش کر کے نال ہاتھوں بھی تیل لا کے مالش کر کے آ جاتے ہیں تو جی وجہ تو جہاں بال میں وڑتا باٹا پہنتا ہے تو اللہ کرے سویرے ریت مال کے آن تاکہ جڑے بال شال نے باہر نہ ٹپکن۔ اسکاٹ لینڈ کی دارالحکومت ایڈنبرا میں بھی پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے پاکستانی کمیونٹی پر امید ہے۔ کہتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم انڈیا کو شکست دے گی اور تمام اوورسیز پاکستانی کے میچ دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ 92 نیوز سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھنے کے لیے ہم بہت پرجوش ہیں اور انشاءاللہ ہم اسٹیڈیم جائیں گے، اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے۔ Pakistan coming over for the Cricket World Cup to the UK. It'll be a big event for internationally. We're all looking forward to it. I'll welcome them over here to the UK. We'll be proud to have them along. It'll be good for the country. انڈیا اور پاکستان کا میچ لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، بہت ایکسائٹڈ ہیں کہ یہاں میچ ہو رہا ہے تو بہت اچھا لگے گا۔ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਮੈਚ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਜਾ ਸਕੀਏ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਮੈਚ ضرور جیتےگا۔ یہ جو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں اور انشاءاللہ بہت سارے دوست جو ہیں انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ وہ گراؤنڈ کے اندر جا کے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کریں گے۔ ایکسائٹیڈ پاکستان کا میچ انڈیا کے اگینسٹ ہو رہا ہے مانچسٹر میں پاکستان کی سپورٹ دوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور کے سینئر وائس پریزیڈنٹ عاطف چودھری کے اعزاز میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیہ تقریب میں سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کے ساتھ ساتھ وکلا برادری بھی کثیر تعداد میں شریک ہوئی۔ سلیم صابری کی رپورٹ۔ سیف چودھری اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی لاہور عاطف چودھری کے اعزاز میں ایک عشائیے کا اہتمام ایسٹ لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں کیا گیا۔ تقریب کے میزبان سیف علی چودھری نے اپنے خطاب میں کہا کہ عاطف چودھری جیسے نوجوان پر پی ٹی آئی کو ہمیشہ فخر رہا ہے، جنہوں نے عمران خان کے حکم پر 2013 میں برٹش نیشنلٹی چھوڑ کر پاکستان کا رخ کیا اور وہاں NA 123 سے الیکشن لڑا اور آج بھی عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی عاطف چودھری نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو تاریخ میں پہلی دفعہ حقیقی لیڈر عمران خان کی شکل میں ملا ہے جس کے دل میں عوام کا درد ہے۔ بجٹ کے حوالے سے ایک جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی چاہتے تو مصنوعی طور پر چیزوں کی قیمتوں کو نیچے رکھ سکتے تھے۔ ہمارا زیادہ فوکس ہے کہ ہم لوگوں پہ پیسے لگائیں، سڑکوں پہ پل پہ ہمارے پیسے لگانے کا اتنا پروگرام نہیں، لیکن جو پرانی چیز ہے دیکھیں اب میٹرو ٹرین ایک ہے، اورنج ٹرین جو ہے اس پہ 150 ارب کے قریب تقریباً لگ گیا ہوا ہے، وہ ہمارے ایک قوم کا پیسہ لگا ہوا ہے، لیکن وہ ابھی تقریباً اتنا ہی پیسہ اور مانگ رہے ہیں۔ لیکن جو اچھے منصوبے ہیں اس کو ہم بالکل کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے یہ والا کام نہیں کرنا کہ جیسے پہلے گورنمنٹ میں ہوتا رہا کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو کام کیے تھے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے تھے اور پیسے ضائع ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، ملک بہت اچھی سمت جا رہا ہے، پاکستان بڑی اچھی سمت جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ دن او نہیں رہے تو دن اے نہیں رہنے، انشاءاللہ یہ بھی دن کٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، پاکستان ان کنٹریز میں ہوگا جو پوری دنیا کے فیصلے کرتی ہیں۔ ترقی ہو رہی ہے، بہت سی چینجز آ رہی ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا خان صاحب وہاں پہ گئے، ان پوٹین سے ملے ان لوگوں سے، تو وہ
इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लोगों को मेरे ख्याल में इस तरह डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। और मेरी तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील है कि इमरान खान का साथ दें। हर रात के बाद सुबह होती है और हर मुश्किलात के बाद आसानी होती है। इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे, और पाकिस्तान जिन मुश्किलात में था उससे काफ़ी बेहतर हो चुका है, और इंशाल्लाह एवरी डे स्टेप बाय स्टेप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम तमाम पाकिस्तानियों की ओवरसीज़ की ड्यूटी है कि अपने कप्तान का साथ दें और इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा करें। हमारी ख़वातीन को भी नुमाइंदगी दी जाए, बल्कि वो बहुत अच्छा डिलीवर कर सकती हैं। ख़वातीन अगर घर अच्छा चला सकती है तो मैं कहती हूँ कि उनको पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से वो अपना सर्विसेज पेश कर सकती हैं। उनका मजीद कहना था कि पीटीआई चाहती है कि सड़कों और पुलों की बजाय अवाम की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसियां मुरतब की जाएं और ऐसे इकदाम किए जाएं कि जिससे गरीब आदमी की जिंदगी का मायार बुलंद हो। लंदन के नवाही इलाके हाई वैकम में नवाब ऑफ कालाबाग अता मोहम्मद के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर बर्मिंघम से ताल्लुक रखने वाली मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक शकूर ने लंदन के नवाही शहर हाई वैकम में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें बर्मिंघम और हाई वैकम की समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जबकि तकरीब के मेहमान खसूसी नवाब अफ कालाबाग मलिक अता मोहम्मद और मेयर अफ हाई वैकम कौंसलर मुजम्मिल हुसैन थे। शुरका का कहना था कि कुछ बरस कबल तक बरतानिया में रहाइश पजीर पाकिस्तानी निजात सिर्फ मुलाजमतों तक महदूद थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और पाकिस्तानियों की नई नस्ल न सिर्फ कारोबार बल्कि मुकामी सियासत में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया की सरकारी मुलाजमतों में भी पाकिस्तानी निजात अब नुमाया तौर पर नजर आना शुरू हो गए हैं। तकरीब में मलिक शकूर के नए कारोबार के लिए दुआए खैर भी की गई, जबकि मौलाना साहिबजादा गुलाम जलानी, मौलाना सुल्तान महमूद, मौलाना हाफिज हमीदुद्दीन कुरैशी, मौलाना प्रोफेसर मसूद हजारवी समेत दीगर बड़ी तादाद में समाजी, मजहबी और सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। यूसीएल पाकिस्तान सोसाइटी की जानिब से वस्ती लंदन में सयाहत के फ़रोग के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। सयाहत और पोटेंशियल आगाही तकरीब में जुल्फी बुखारी और हमजा अली अब्बासी ने खुसूसी शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। वस्ती लंदन में यूसीएल पाकिस्तान सोसाइटी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग और पाकिस्तान में मौजूद कुदरती हुस्न से मालामाल इलाकों में सियाहती सहूलियात पर रोशनी डाली गई। तकरीब के मावन खसूसी जुल्फी बुखारी और हमजा अली अब्बासी ने शुरका से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियाहत पर पिछले अदवार में कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया गया। हालांकि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के गिने चुने ऐसे इलाकों में होता है जहाँ कुदरती हुस्न और तारीखी पस मंजर से भरे मुकामात की कमी नहीं, और जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में निजी सतह के होटल और गेस्ट हाउसेज इन इलाकों में मौजूद हैं, जिनको बेहतरीन सियाहती सहूलियात कहा जा सकता है। जो लाइफ लाइन है हमारी टूरिज़म की पाकिस्तान में, वो है ही हमारा ओवरसीज़ डायस्पोरा, और उस ओवरसीज़ में इन पर्टिकुलर जो हमारी यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं सारे, जब तक ये नहीं आना चाहेंगे वापस पाकिस्तान में तो टूरिज़म उस तरीके से ओवरसीज़ में नहीं कामयाब होगी। यूथ हमारी वो हर जगह शौक़ उनको होता है कि ट्रैवल करें, दुबई जाते हैं, मोरक्को जाते हैं, लेबनान जाते हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान भी वो आएँ। तो जो एल्डर जो उनके वालिदैन होते हैं वो तो वैसे ही आते थे या आते हैं, लेकिन जो टूरिज़म का जो मकसद है वो शुरू होगा जो हमारी ओवरसीज़ और जो लोकल जो यूथ है। मैं पहले दिन से आप मेरे इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, मैंने हमेशा फोकस किया है कि हमारा टूरिज़म उठाएगा पाकिस्तानी, हमारा टूरिज़म उठाएगा हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन मैं लोगों के पे गिनती नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम ठीक करें, पहले उनको सहूलतें दें। हम उनको कैसे ब्लेम करें कि आप नहीं आ रहे जब तक हमने उनको आने के लिए कुछ दिया नहीं है, तो पहले हम उनको कुछ दें आने के लिए, उनको दिखाएं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले 3 महीनों में जो पाकिस्तान का जो टूरिज़म का ब्रांड होगा वो हम लॉन्च करेंगे, खाली पाकिस्तान में नहीं लेकिन दुनिया भर हम पाकिस्तान का ब्रांड, अभी जो एक यूनिफॉर्म ब्रांड होगा सारे सूबों को, GB को, कश्मीर को साथ रखते हुए ये ब्रांड हम लॉन्च करेंगे। तकरीब में मौजूद शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सियाहत के फ़रोग के लिए उठाए जाने वाले इकदाम को सराहा और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से तावन की यकीन दहानी करवाई। ये कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखा गया ताकि पाकिस्तानी
स्टूडेंट्स को पता चल सके कि पाकिस्तान में टूरिंग की अपॉर्चुनिटीज कितनी ज़्यादा हैं, उनको नॉलेज हो इसके बारे में। आज हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया ताकि हम पाकिस्तान के टूरिज़्म और इनोवेशन पे बात कर सकें। हमारे यहाँ पे काफ़ी BPF स्टूडेंट्स डिफरेंट लंदन यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान सोसाइटीज़ के इकट्ठे हुए हैं और हमारे गेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में टूरिज़्म और इंक्रीज़ अवेयरनेस के लिए ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया। आज का इवेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हो रहा है, तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि सईद जुल्फ़िकार बुखारी साहब और हमज़ा अली अब्बासी साहब आके बात कर रहे हैं टूरिज़्म के ऊपर कि पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है टूरिज़्म के लिए और एंटरप्राइज़ के लिए भी। हमने ये अपसाइन जो यूके पाकिस्तान साइंस इनोवेशन नेटवर्क है, इसके तहत ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका मकसद बेसिकली ये है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है उसको जो है पूरी दुनिया को दिखाया जाए, और स्पेशली जो है मतलब हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ का जो पोटेंशियल है तो उसको जो है हमारे यहाँ पे एक तो इटसेल्फ पाकिस्तानी जो 1.3 मिलियन के करीब पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, तो हम ये उनको इनकरेज करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को विज़िट करें, और ये चाह रहे हैं कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को हेल्प करें, लोग किस तरह से ऑनलाइन बुकिंग कर लें, किस तरह से है उन एरियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपसाइन विल हेल्प टू डू सम मोर रिसर्च और कनेक्ट करेगी इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इस मौके पर जुल्फी बुखारी और हमजा अली अब्बासी का मजीद कहना था कि चेयरमैन PTDC होने के नाते इनका फर्ज है कि वो सियाहत के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएं, इसलिए ऐसी तकरीबात में आगाही मुहिम को तेज़ किया जा सकता है। डबलिन में इत्मीनान पार्टी ने समा बांध दिया। मुसलमानों के साथ साथ लोकल कम्युनिटी ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और ईद के त्यौहार से लुत्फानंदोज होते रहे। मज़ीद तफसीलात के लिए फैसल मिर्जा की ये रिपोर्ट देखिए। डबलिन के इलाके क्लांग्रीफन में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। इस ईद मिलन पार्टी का इंतजाम कम्युनिटी की फलाह के लिए काम करने वाली निजी तंजीम ने किया था, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ तमाम मज़हब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और मुसलमानों के इस सालाना त्यौहार को पहली दफा आयरलैंड में मनाकर खुशी का इजहार किया। ईद मिलन पार्टी में बच्चों और बड़ों के साथ साथ खवातीन की भी बड़ी तादाद देखने को मिली। मेहंदी और फेस पेंटिंग के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने नजर आए, तो दूसरी तरफ खाने के मराकिज से लोगों ने पाकिस्तानी डिशेस का मजा चखा। ईद मिलन पार्टी में शिरकत करने वाले लोकल अफराद का कहना था कि इस जगह पर ऐसा इवेंट देखकर बहुत खुशी हुई और मुसलमानों के इस त्यौहार के रंगों और खानों के बारे में जानकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। आज डबलिन में यहाँ के तमाम कल्चर्स, यहाँ के तमाम सोसाइटीज़ के लोग जमा हुए हैं और हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। We've organised this through Tasnuva Foundation, and the idea was to bring communities together from all different aspects and all different people. So we have Pakistanis, Afghanistan, Africa, Irish, Italian, Polish, and it's a great little environment here today. So we just opened a new business here in Clongriffin, Dublin Bay Vets across the street. This is our first time at this festival, and really impressed. Lovely food, great atmosphere, really good family atmosphere. Great opportunity for us to mix with the community and bring our car, let the kids get used to us and play around the car, which they've turned into a playground. It's fabulous, and thanks for all the organisation that went into this as well. आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक हो। आप सबको ईद मुबारक, and in Arabic it said Eid Mubarak. I think it's like important, to be honest, to have all these games and all these youth out here today experiencing different cultures, and I think to see all different people's backgrounds is quite important to see at this event today in Dublin. Happy to see all these people that came here. The event was a great success, and there were a lot of communities from different countries from all over the world that came to this event. I would like to thank people who've been here, the people who was partner with supporting like Kinara, Dublin City, and brother Faisal, and people from the Clongriffin community. And it was fantastic program today, who've been successfully run to the community. We had many turn-ups, many of the youth, many of the families, non-Muslims also came on met Muslims, how we live, how we communicate. मौसम की आंख मचोली के बावजूद एक बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत से वाज़े हुआ कि आयरलैंड में इस तरह के इवेंट्स में अवाम खासी दिलचस्पी रखते हैं और उनको मजीद मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक्किद करने के लिए मुसलमान कम्युनिटी को मिलकर काम करना होगा। डबलिन 13 के क्लॉन्ग्रिफन एरिया में मस्जिद के बिल्कुल साथ ये जो ईद मिलन पार्टी रखी गई, इसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों के साथ साथ लोकल कम्युनिटी, पुलिस और जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी शिरकत की। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और एक बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर शिरकत करके ईद की खुशियों को दोबारा कर दिया।
फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। कैप्टन जावेद इकबाल शहीद की वालिदा लेफ्टिनेंट डेंस्टेबल अस्पताल में वफात पा गई हैं। उनकी नमाज जनाजा जाम इस्लामिया गौसिया ट्रस्ट में अदा कर दी गई, जिसके बाद मैयत आज़ाद कश्मीर रवाना कर दी गई। उनकी तदफीन अपने बेटे कैप्टन जावेद इकबाल के पहलू में काला ढब में की जाएगी। कैप्टन जावेद इकबाल शहीद की वालिदा के बेटे ब्रिटिश कश्मीरी थे। पाक अफवाज में जज्बा शहादत के पेश नज़र उन्होंने कमीशन लिया और 1999 में कारगिल महाज पर जाम शहादत नोश किया। शहीद की वालिदा जुम्मे के दिन लुटन में दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गई थी। नमाज जनाजा में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि काजी अब्दुल अजीज़ चिश्ती ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। यूनाइटेड एमिरेट्स हॉकी क्लब के खिलाड़ी रवां माह मलेशिया का दौरा करेंगे, जहां वो नुमाइशी मैचेस के अलावा टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेंगे। दुबई से देखिए मुदस्सिर खुशनूद की ये रिपोर्ट। यूनाइटेड एमिरेट्स हॉकी क्लब की जानिब से खेल के फरोग के लिए अहम इकदाम। क्लब के खिलाड़ी रवां माह मलेशिया का 9 रोजा दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो नुमाइशी मैचेस और मुकामी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। इस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हॉकी क्लब के चेयरमैन चौधरी अब्दुल हमीद, टीम कप्तान अब्दुल वहीद, स्पॉन्सर्स और दीगर हुकाम ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में हुकाम का कहना था कि दौरे से न सिर्फ UAE और मलेशिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत होंगे, बल्कि हॉकी को भी फरोग मिलेगा। We don't have any goals of winning, losing. We are just going to enjoy ourselves. Make sure that people know that there is hockey alive in UAE, and that's all my purpose of this is, and to promote UAE as the year of tolerance. And I'm going to show them that when we play hockey over there, we are going to be tolerant, and we're going to show that we can play good hockey and a very pleasant hockey. I hope so. I mean, I've not been following the team so much, but I do hope they do well. All the best to them, and inshallah they'll come. Thank you. I see the passion in the room about hockey, and it's fantastic. Like everybody said, Ahmed is so passionate about the sport, and I feel really proud as an Emirati. He's promoting this sport all over the world. This is fantastic. इस मौके पर स्पॉन्सर्स को एजाजी शील्ड्स से नवाजा गया, जबकि मलाइशियन कौंसल जनरल अहमद अली साइक को खुसूसी ट्रॉफी दी गई। आखिर में मुंतजमीन ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया